बहुत हमें लगता है कि अगर प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं, मतलब वो अगर कोचेस को लगता है कि अगर वो बहुत ज्यादा उनमें वैसे नहीं है तो उनको ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगे. So that the help's going to be to grow as a cricketer, as well as other things, as I said about nutrition. We're going to provide in the sense nutrition is going to help them to understand about nutrition, about their body, knowing their body, as well as psychological part of it as well. So those things are going to be very, very crucial to develop not just as a cricketer but as a as a human being as professional well. athlete as well. Absolutely. Can you please take us through again all of what exactly you're going to do in Baroda? Where are you going to start it? Whom are you going to target initially? You talked about briefly something, it was very vague about school students and all. And you said, talked about 8 or 9 months, so what are you going to do the rest of the year? If it's going to be right through the camp, going through right through the year. Can you take us through everything right from the start, please? Absolutely. Okay, so Cricket Academy of Pathans, okay, which we aim to start by the end of this October. We're going to be going to schools who's going to have infrastructures for cricket, right? They're going to have grounds. जहाँ पे जिसके पास grounds है, वो वहाँ पे जाएंगे. And we're going to make sure that so you're going to set up academies over there. Over there. Academy of Pathans. Yes, over there. Answering your questions about 8 or 9 months. No, it's 8 and 9 weeks every coaching modules, right? So 8 or 9 weeks going to be in 8 or 9 weeks. He's going to learn. The kid's going to learn what's going to happen, like basic things. Basic coaching, cricket coaching, how to play cricket shots, that's all the academies do. But at the same time, he's going to learn about his body and everything. And if he is to stay, which is going to have 2 or 3. So we're going to have not just one coaching modules, which is going to be from the starters, but we're going to have advanced coaching as well, which is going to go run throughout the whole year, not just for 8 or 9 weeks, as we said. 8 or 9 weeks are the time of that course. जैसे कोर्सेज होता है ना किसी भी चीज का, तो वो कोर्सेज वहां पे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 8 और 9 वीक्स ही होंगे. उसके बाद एडवांस कोर्सेज भी होंगे जो फिर से 8 और 9 वीक्स के होंगे, और वैसे कोर्सेज थ्रू आउट द ईयर अलग अलग जगह पे चलते रहेंगे. So are we looking at natural progression of the cricketer? Have you identified any schools already in Baroda that those who are interested in cricket? Yes, we have already identified that, and you can get the information from my manager. We already have identified this. Been going on for last 6 or 7 months in terms of getting the background done, and we have done the research as well that how the model should be as well. So we have done a lot of research in terms of what kids we're going to be targeting, what are the kids going to be coming to the academy, and what the benefits we're going to provide them. See, we already identified a few coaches. They're not only from Baroda, so obviously there's going to be coaches, which is one going to be head coach, who's going to oversee whole academy. At the same time, we're going to have in every academy, in every coaching modules, we can have 2 assistant coaches who's going to work under that coach, and that main head coach is going to work under Greg Chappell in terms of getting the basic coaching syllabus. इसमें क्या गरीब बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग होगी? See, at the same time, first जब हम लोग start करेंगे, so obviously जैसा मैंने कहा कि हम लोग normally start करेंगे, बट वैसे ही हम लोग माशाल्लाह अगर जितने लोग जानते हैं, हम लोग काफी ये सारा काम करते हैं गरीब बच्चों के लिए भी और पढ़ाई के लिए भी, तो डेफिनेटली सिर्फ ये काम वैसे काम में नहीं होगा, लेकिन एट द स्टार्ट हम लोग प्योरली प्रोफेशनल बेसिस पे स्टार्ट करेंगे. क्या फीस होगी? फीस अबाउट डिपेंड ऑन अलग अलग जगह पे अलग अलग कोचिंग फीस रहेगी. जहाँ पे अगर हम लोग बड़ौदा में स्टार्ट कर रहे हैं, सो अगर एक कोचिंग कोर्स का रहेगा 10 to 15,000, आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव डिसाइडेड फॉर द कोर्सेज, द होल कोर्स 8 or 9 weeks or 10 weeks जितना कोर्स चलेगा. हेलो Just one thing, how many turf wickets you have? बड़ौदा में बहुत turf wickets होना चाहिए. ये तो सब कुछ turf wicket ही होगा ना? एब्सोल्युटली जिस तरह से अगर हमको आगे भी क्रिकेट खेलना है तो टर्फ विकेट पे ही खेलना. सो पूरा शेड्यूल उसी पे बनाया है कि टर्फ विकेट होगी तभी जाके होगा. ऑब्वियसली यू नीड टू हैव एस्ट्रो टर्फ. अगर बारिश गिर गया, यू नीड टू हैव मेक श्योर सीमेंट पिचेस एज वेल, कि अगर आपको एक्स्ट्रा काम करना है, लेकिन बेसिक जो मेन प्रैक्टिस वगैरह रहेगा वो टर्फ विकेट पे रहेगा. सर, हम ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो मुंबई में ग्राउंड्स कम होते जा रहे हैं, जो कुछ बचा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में चले जा रहे हैं, तो बच्चे खेलेंगे कहाँ? इसीलिए ये एक और रीजन भी था कि हम लोग स्कूल के पास जा रहे हैं, क्योंकि कई स्कूल्स आप अगर देखोगे सिर्फ बड़ौदा में, कई और जगह पे उनके पास काफी ऐसी फैसिलिटीज होती है, काफी जहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड होता है, जहाँ इतना बड़ा क्रिकेट ग्राउंड होता है जहाँ पे आप प्रैक्टिस करा सकते हो.
वहाँ पे आप पिचेस भी बना सकते हो। आपको अगर 10 पिचेस बनाना है आपको 30 यार्ड से भी आपको कम उसका जगह चाहिए आपको, और उसमें आप बॉलिंग कर सकते हो, बैटिंग कर सकते हो, बट दैट जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ऑब्वियसली प्लेइंग मैचेस वी गोना बी गेटिंग एफिलिएटेड बाय द एसोसिएशंस। अगर बड़ौदा में है तो बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हमारा एफिलिएशन होगा, और वहां से वो लीग क्रिकेट भी खेल सकेंगे और वहां से वो ग्रो करेंगे। तो जो बेसिक फैसिलिटीज है वो हम लोग वहां पे अकेडमी में प्रोवाइड करेंगे। यूसुफ भाई से लगा सवाल है। यूसुफ भाई, ये जो बच्चे होंगे लर्निंग स्टेज पे होंगे, ज्यादातर ध्यान किन चीजों पे दिया जाएगा? T20 के लिए, वनडे के लिए या टेस्ट के लिए? जैसे इरफान ने कहा, बेसिक्स उनको सिखाया जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरह से बच्चा खेल रहा है और उसके अंदर क्या टैलेंट है, वो आइडेंटिफाई करेंगे हम कि बच्चे के पास क्या स्ट्रेंथ है, कि वो किस तरह के शॉट्स खेल पाता है, किस तरह के नहीं, वो क्या 4 डेज के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो उसको नॉर्मली पहले उसको बेसिक्स क्रिकेट सिखाया जाएगा, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी तरह उनको सिखाया जाएगा। इरफान, कोशिश किस में रहेगी? टेस्ट प्लेयर ज्यादा बनाए, क्योंकि अभी टेस्ट प्लेयर आपको देखिए मिल ही नहीं रहे हैं। कोशिश किस चीज पे रहेगी? देखिए, जैसे कहा कि वो आइडेंटिफाई करना हमारे कोच का काम रहेगा, बिकॉज कोच ने वो कोचिंग सीखी होगी टॉप लेवल से, तो उसका काम रहेगा आइडेंटिफाई करना कि एक लड़के पे भी डिपेंड करता है। कई लोग जैसे माने जाते कि ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेट या 4 डे क्रिकेट के लिए बने जाते हैं, कई लोग नहीं मानते कि भाई वो वनडे के लिए क्रिकेट के लिए नहीं है या 4 डे क्रिकेट के लिए नहीं है। वही काम हमारे कोचेस का रहेगा कि वो आइडेंटिफाई करेंगे। ऑब्वियसली बाकी सारी स्किल भी उसके साथ डेवलप करने की कोशिश की जाएगी उसमें, कि अगर कोई लड़का जो थोड़ा स्लो गेम खेलता है, उसका गेम 4 डे के लिए ज्यादा यूज टू है या 4 डे के लिए ज्यादा यूजफुल है, तो उसको 4 डे के साथ साथ वो तो डेवलप करेंगे ही, लेकिन उसके साथ अगर उसको वनडे और T20 में भी अगर उसको हेल्प चाहिए तो उसको कैसे बॉटम हैंड यूज करना है, कैसे उसको बड़े शॉट्स खेलने हैं या डिफेंस कैसे करना है, सो बेसिकली हर चीज पे तवज्जो दी जाएगी। यूसुफ भाई, ज्यादातर जो है बच्चे मुझे लगता है कि आपके पास आएंगे पूछने के लिए कि एक ओवर में 30 रन कैसे बनाए, तो क्या कहेंगे आप उनको, कैसे बताएंगे? पहले उनको डिफेंस करना सिखाएंगे, क्योंकि अगर डिफेंस नहीं करेंगे तो 30 रन नहीं बना पाएंगे। तो पहले उनको वही है कि किस तरह से स्टार्ट करें, कि वो एक ओवर में 30 रन कैसे बनाने, पहले वो ना सोचे, तो पहले 6 ओवर में कितने बॉल्स खेलने हैं। और मुझे लगता है यूसुफ भाई 5 बॉल में 30 रन बनाना है कैसे वो बताएंगे, लेकिन हमारा काम कोचिंग करना नहीं होगा, हमारा काम होगा ओवरसी करना कि बच्चों की ग्रोथ कैसी हो रही है एट द स्टार्ट ऑफ द कोचिंग कोर्स एंड एट द एंड ऑफ द कोचिंग कोर्स। जो कोचिंग का काम रहेगा अभी, जब तक हम लोग 5 से 7 साल क्रिकेट खेल रहे हैं, ऑब्वियसली ये अच्छी चीज भी होगी कि जब तक हम लोग 5 से 7 साल बाद, 8 साल बाद जब क्रिकेट छोड़ेंगे, तब हमारे पास काफी नॉलेज भी हो जाएगा इस सब चीजों के लिए, बिकॉज यहाँ पे हम लोग इन्वॉल्व हो गए अकेडमी में। बट हमारा जो कोचिंग का, जो अकेडमी का जो बेसिक जो चीजें रहेगी बच्चों को सिखाना, वो सारी चीजें, उसमें सिर्फ हम लोग ओवरसी करेंगे एट द स्टार्ट ऑफ द कैंप एट द एंड ऑफ द कोचिंग कोर्स। I'm sure Yusuf, if somebody comes and asks Yusuf how to score 30 or 1 ball or 1 over, he can always say you can go and ask Dale Steyn as well. I mean, why asking me? It can be as simple. इरफान और यूसुफ, इधर आप दोनों को बधाई हो इसकी शुरुआत के लिए। एक शुरू में आपने कहा, 2-3 दफा आप लोगों ने कहा, अभी भी कहा कि 5 से 7 साल खेलेंगे। हालांकि जनरल एक फीलिंग यही जाएगी, मैसेज यही जाएगा, मुझे लगता है कि अब इनको अपना इंटरनेशनल करियर नहीं दिख रहा, इसलिए ये इस वेंचर में आ रहे हैं। फिर भी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग वापसी कितनी सीरीज या कितने महीने दूर देखते हैं अपनी वापसी इंडियन टीम में? देखिए, जो आपका सवाल है इसीलिए हमने बड़ा क्लियर कर दिया कि कोचिंग हम नहीं करेंगे, हम लोग ओवरसी देखेंगे, ओवरसी करेंगे। अब ये टाइमिंग हमारा इतना अच्छा बेहतरीन सेट हुआ है कि ये जो मेरा विजन था, हमारा विजन था, वो अभी उसको हम रियलिटी में अभी हमको सामने दिख रहा है, जो बहुत करीब है हमारे लिए होने के लिए। बाकी जो सवाल है आपका, डेफिनेटली हम लोग यहीं पे है, 2-3 दिन आप हमें फोन कर दीजिए, हमारे सारे प्लान आपको बता देंगे। लेकिन फिलहाल अगर मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि आप अगर सिर्फ अकेडमी तक सवाल रहे, लेकिन पूरा प्लान आगे जाके अच्छा क्रिकेट इंडिया के लिए और आगे खेलने का पूरा प्लान है। लेकिन फिलहाल अभी हमारा ये जो यहाँ पे हम जिसके लिए आए वो अकेडमी के लिए आए हैं, लेकिन इसीलिए हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया था पहले कि हम लोग कोचिंग नहीं करेंगे। हम लोग अभी 5 से 7 साल तक, ये फिर से मैं कहूँगा 5 से 7 साल तक इंशाल्लाह जरूर क्रिकेट खेलेंगे अच्छे लेवल पे। ग्रेट। यहाँ